بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ آپ دیکھ رہے ہیں خلیل مدنی یوٹیوب چینل۔ آج ہم آپ کے لیے ایک بہت ہی اہم اور دلچسپ ٹاپک لے کر حاضر ہوئے ہیں، اور وہ ٹاپک ہے عشر کسے کہتے ہیں۔ غلہ، اناج، پھل فروٹ اور سبزیاں وغیرہ، ان پر عشر کب دینا چاہیے؟ عشر نہ دینے کے نقصانات کیا ہیں؟ نیز عشر کسے دیا جائے؟ عشر واجب ہونے کے لیے کم از کم کتنی مقدار میں اناج، غلہ، فروٹ وغیرہ ہونا چاہیے؟ یہ ساری چیزیں اور بہت ساری معلومات انشاءاللہ ہم آج کی اس ویڈیو میں سماعت کر سکیں گے۔ اللہ ہم سب کو علم دین سیکھ کر عمل کی توفیق عطا فرمائے۔ ایک مثال اور اس چیز سے ہم اس کو سمجھنے کی کوشش کرتے ہیں کہ عشر دینا کیوں ضروری ہے، یہ عشر واجب کیوں ہے۔ سرکار صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، یہ صدقات لوگوں کے مال کا میل ہیں، یعنی لوگوں کے پاس جو مال ہوتا ہے وہ کسی بھی صورت میں ہو، وہ مال گنے کی صورت میں ہو، وہ مال اناج کی صورت میں ہو، وہ مال پھل کی صورت میں ہو، وہ مال فروٹ کی صورت میں ہو، وہ سبزی ہو، یہ جتنی بھی چیزیں ہیں یہ اللہ کی طرف سے مال ہیں، اور صدقات لوگوں کے مال کا یہ میل ہوتا ہے، اور اس میں سے جو ہم عشر دیتے ہیں یہ بھی ایک صدقہ واجبہ ہے۔ ایک بڑی پیاری مثال سے سمجھایا گیا۔ کہتے ہیں جیسے گنے سے گڑ بناتے ہیں، جو لوگ گاؤں دیہات کی طرف گئے ہوں، جو گڑ بنتا ہے وہ گنے سے بنتا ہے۔ اس میں جب گڑ بنایا جاتا ہے تو اس کے اوپر ایک میل بن جاتا ہے، تو جب تک وہ میل صاف نہ کریں اس وقت تک گڑ کا رنگ اور ذائقہ صاف نہیں ہوتا، اور وہ گڑ میٹھا بھی نہیں ہوتا۔ امید ہے آپ اس مثال کو سمجھ رہے ہوں گے۔ اور اس میل کا کوئی وزن بھی نہیں ہوتا۔ جی، جب وہ ایک گاؤں میں رہنے والا وہ شخص جو کاشتکاری کرتا ہے، وہ گنے سے گڑ بناتا ہے، اور اس بہت بڑے ایک جس کو پنجابی زبان میں کڑا کہتے ہیں، یا ایک بہت بڑا پتیلا کہیں، اس میں جب گڑ بنایا جا رہا ہوتا ہے تو اس سے جو میل اترتی ہے اس کا وزن نہیں ہوتا۔ جی ناظرین، بالکل اس کا وزن نہیں ہوتا، بلکہ اسی طرح زکوٰۃ اور عشر انسان کے مال اور زمینی پیداوار کا یہ میل ہوتا ہے۔ جب تک زکوٰۃ اور عشر ادا کر کے یہ میل دور نہ کیا جائے تب تک وہ مال یا اناج پاک صاف نہیں ہوتا۔ پھر اس میل یعنی زکوٰۃ اور عشر کو نکالنے سے اصل مال کم بھی نہیں ہوتا، جی بلکہ اس میں برکت پیدا ہو جاتی ہے۔ اس لیے زکوٰۃ اور عشر لازمی ادا کریں تاکہ آپ کا مال اور اناج پاک اور صاف ہو جائے اور برکت والا بن جائے۔ تو آئیے ناظرین اپنے ٹاپک کو آگے بڑھاتے ہیں، اور سب سے پہلے جاننے کی کوشش کرتے ہیں کہ کیا قرآن پاک میں زمینی جو پیداوار ہوتی ہے اس میں سے عشر دینے کا حکم ہے۔ تو ہم قرآن کھولتے ہیں، پارہ 8 سورہ الانعام آیت نمبر 141 میں اللہ ارشاد فرماتا ہے، وَآتُوا حَقَّهُ يَوْمَ حَصَادِهِ۔ ترجمہ: جس دن کھیتی کاشت کرو اس دن اس کھیتی کا حق بھی ادا کرو۔ یہاں ایک بہت زبردست بات ہمیں اس ترجمے سے ہی پتہ چل گئی۔ جو دوست سوال کرتے ہیں کہ عشر کب دیا جائے، زکوٰۃ جیسے سال میں ایک بار دیتے ہیں تو آیا عشر بھی سال میں ایک بار دینا چاہیے یا کتنی بار دینا ہوگا؟ تو اس کا جواب قرآن کی اس آیت میں بالکل واضح ہے۔ جس دن کھیتی کاشت کرو، آپ نے جو بھی کھیتی بوئی
وہ 6 महीने बाद आपने काश्त की या 3 महीने बाद काश्त की या जब काश्त की, वो जब काश्त की तो जिस दिन खेती काश्त करो उस दिन उस खेती का हक भी अदा करो, यानी उसका उसमें से उशर अदा करो। अब हम इस बात की तरफ आते हैं कि जब हमने ये अल्लाह की राह में ये उशर निकालना है तो उशर कहते किसे हैं? उशर कहते हैं ज़मीन की पैदावार पर हम जो ज़कात दे रहे होते हैं उसे उशर कहते हैं। ये तो एक सिंपल डेफिनेशन है। जैसे गंदम, जौ, चावल, गन्ना, तमाम सब्जियां, हर किस्म के फल, इन पर ये उशर वाजिब होता है। उशर कहते हैं 10वें हिस्से को। तो उशर 10वें हिस्से को कहते हैं। और एक शरीयत इस्लामिया की तरफ से उशर है, दूसरा निस्फ उशर है। समझ लीजिएगा इसको। उशर 10वां हिस्सा कहलाता है और निस्फ उशर 20वां हिस्सा कहलाता है। 10वें हिस्से का मतलब ये है कि अगर 100 मन गंदम है तो उसमें से आपने 10 मन अल्लाह की राह में देनी है। और 20वें हिस्से का मतलब ये है कि 100 मन में से 5 मन अल्लाह की राह में आपने देनी है। या वो 5 मन गंदम या जो भी आपकी प्रोडक्ट उसमें से निकल रही है या ज़मीनी पैदावार जो आपकी उस वक्त हो रही है, वो गंदम हो, जौ हो, चावल हो, गन्ना हो, XYZ कुछ भी हो, वो उसमें से आप उसका 20वां हिस्सा और 10वां हिस्सा अदा करेंगे। अब 20वां हिस्सा कब दिया जाएगा और 10वां हिस्सा कब दिया जाएगा, ये बात भी समझने की है। जिस पैदावार पर उशर होता है वो वाली पैदावार होती है कि जिसको आपने काश्त किया और वहाँ पर आपको कोई और मेहनत ना करनी पड़ी। जस्ट आपने पानी, जो फल था, जो बीज था, वो डाल दिया और अल्लाह की तरफ से उस पर बारिश बरसी और वो खेती सैराब हो गई और उसमें जो है वो चीज़ पैदावार बन गई, वो पक गई, फसल तैयार हो गई, आपने उठा ली, उसमें उशर है। लेकिन ऐसी ज़मीन, ऐसी काश्त, ऐसी पैदावार जिसको आपने बोया और उस पर आपने इस अंदाज में मेहनत की कि आपने पानी ख़रीद कर लगाया या पानी उसको मौजूदा निज़ाम के हिसाब से जो हम पानी लगाते हैं वो सैराब किया दरिया से या चीज़ों से, तो इसी सूरत में इस पर निस्फ उशर वाजिब हो जाएगा। चूँकि हमारे यहाँ जो अंदाज़ है, हम जिस तरीके से ज़मीनों को काश्त कर रहे होते हैं, तो हमारे यहाँ निस्फ उशर का हुक्म दिया जाता है। और मज़ीद इसकी वजाहत अगर आप चाहें, कोई चीज़ समझ में ना आए, तो आप हमें कमेंट बॉक्स में कमेंट के ज़रिए से भी इसकी वजाहत तलब कर सकते हैं, या हमारा ये व्हाट्सअप नंबर स्क्रीन पर आ रहा है, इस नंबर पर आप मुझे व्हाट्सअप करके भी शरई मसाइल को समझ सकते हैं या कॉल करके समझ सकते हैं। अब इसके अंदर जो चीज़ है कि हमारे यहाँ अमूमन जो ज़मीनें गांव देहात में आबाद की जाती हैं, वो ज़मीनें नहीं जो कि सिर्फ़ जो है वो बारिश की वजह से आबाद होती हैं, उसके अलावा की ज़मीनें, उसमें निस्फ उशर ही दिया जाएगा, यानी 20वां हिस्सा की दिया जाएगा। अब एक और सवाल होता है कि उशर वाजिब होने के लिए कम से कम मिक़दार कितनी है? तो कम से कम इसकी कोई मिक़दार बयान नहीं की गई, बल्कि ज़मीन से जो गल्ला, फल, सब्ज़ियाँ जितनी भी मिक़दार में हों, मिसाल के तौर पर अगर उसमें टोटल 100 किलो ही वो काश्त हुई, मैं 100 मन की मिसाल दी थी, अब 100 किलो है तो उसमें से 5 जो है वो किलो आप जो है वो अल्लाह की राह में उशर या निस्फ उशर के तौर पर आप दे देंगे। एक और सवाल इसके अंदर बहुत अहम होता है कि क्या कर्ज़दार को उशर मुआफ़ है? तो याद रखिएगा, कर्ज़दार से उशर मुआफ़ नहीं है, उसको भी जो है वो उशर देना होगा। कर्ज़दार का कर्ज़ का जो ताल्लुक़ है वो इस काश्तकारी के साथ नहीं है, बल्कि कर्ज़दार भी उशर अदा करेगा, इस पर भी उशर वाजिब है। ये ज़कात के बरखिलाफ़ अमल है, उशर मक़रूज़ पर भी वाजिब होता है। और उशर किस शख्स को दिया जाए, ये एक सवाल है। तो उशर उन्हीं लोगों को दिया जाए कि जो लोग ज़कात के मुस्तहिक़ हैं, जिन लोगों को ज़कात दी जा सकती है, या जिन जिन जगहों पर ज़कात के जो मसारिफ़ हैं वहाँ पर उशर भी दिया जा सकता है। और इसी तरीके से 2 चीज़ें और बहुत अहम हैं कि ठेके की ज़मीन पर उशर किस पर होता है। तो याद रखिएगा,
ठेके पर दी जाने वाली ज़मीन की पैदावार पर भी उशर होगा और जो ठेके पर ज़मीन ले रहा है उशर वही अदा करेगा। जिस शख्स ने ज़मीन किसी को किराए पर दे दी तो वो जो ठेका वसूल करने वाला शख्स है वो रकम लेकर साइड पर हो गया, उस पर उशर वाजिब नहीं होगा। उशर जो है वो काश्तकार पर वाजिब होगा जो काश्तकारी कर रहा है। तो हमारे यहाँ गांव देहात में जो लोग ज़मीन, उनकी ज़मीन है, फॉर एग्ज़ाम्पल मेरी ज़मीन है, मैंने ठेके पर दे दी है किसी को, तो जिस शख्स को दी है मैं उससे ठेके की जो रकम तय हुई है या किराए की जो रकम तय हुई है वो रकम मैं हासिल कर लूँगा और सिर्फ़ वो रकम मैं उससे ले लूँगा। अब उसमें जो उशर होगा वो काश्तकार ही अदा करेगा। लिहाजा जितने भी ठेके पर लेने वाले लोग हैं, ज़मीन किराए पर लेकर काश्तकारी करते हैं, उनको मसला समझ लेना चाहिए कि वो ही लोग उशर अदा करेंगे। और एक और बड़ा अहम सवाल है कि उशर की अदायगी से पहले अखराजात अलग करना। बाज़ लोग ये करते हैं कि वो ये समझते हैं या गलत फहमी की तरफ होते हैं कि उशर की कुल पैदावार में से अखराजात को वो निकालते हैं और निकालने के बाद फिर निस्फ उशर या उशर निकालने की तरफ जाते हैं। ऐसा नहीं है। याद रखिएगा, ज़रात, हल बैल या जो भी आपने अखराजात किए, उसकी उजरत दी, बीज, खाद, अद्वियात, स्प्रे, तमाम की तमाम चीज़ें निकाल कर बाकी उशर या निस्फ उशर दिया जाएगा। तो इस चीज़ के हवाले से इस मसले को आप अच्छे अंदाज से समझ लीजिए। उशर जो है वो जिस पैदावार, यानी जिस पैदावार में उशर या निस्फ उशर वाजिब होता है उसमें कुल पैदावार का उशर या निस्फ उशर लिया जाएगा। ये सारे अखराजात निकाल कर उशर नहीं दिया जाएगा। वो जो कुल आमदन हो रही है, मिसाल के तौर पर अगर उसके एक खेत में 50 मन गंदुम निकलती है और उसके पास टोटल 2 खेत उसने किराए पर लिए हुए हैं या अपने हैं और अखराजात उसके भले जितने भी हुए, अब वो 100 के 100 पर 5 मन जो है वो 100 मन पर 5 मन उशर साइड पर कर लेगा पहले, और फिर उसके बाद बाकी चीज़ों का हिसाब और मामलात की तरफ जाएगा। ये अल्लाह की तरफ से इस पर वाजिब अमर है, इसको पहले अदा किया जाएगा। अल्लाह ताला अज़्ज़ व जल की बारगाह में दुआ है कि खालिक कायनात हमें उशर अदा करने की तौफ़ीक़ अता फ़रमाए। अच्छा, एक आखिरी बात जो आपसे मैं अर्ज़ कर दूं कि उशर न देने के नुक़सानात क्या हैं। अल्लाह तबारक व तआला अज़्ज़ व जल के प्यारे हबीब सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने उशर न देने वाले के मुताल्लिक़ जो इरशाद फ़रमाया वो फ़रमान आप समात कर लीजिए। जो कौम ज़कात न दे अल्लाह ताला उसे कहत में मुब्तला कर देगा। अल्लाह अकबर। तो याद रखिएगा, माल में से ज़कात देना ज़रूरी है, वरना अल्लाह ना करे अल्लाह बारिशों से फसल को तबाह कर दे, फसल बड़ी अच्छी हो लेकिन उतनी पैदावार ही ना हो पाए, तो ये अल्लाह ही की कुदरत है। तो अगर हम फराख दिली से निकालेंगे अल्लाह भी बहुत ज़्यादा अता फ़रमाएगा। तो अल्लाह ताला की बारगाह में दुआ है खालिक कायनात अमल की तौफ़ीक़ अता फ़रमाए। उम्मीद है आपको ये वीडियो बहुत पसंद आएगी और इसमें बहुत सारी मालूमात को जमा करने की कोशिश की गई है। अल्लाह हम सब का हामी नासिर हो। अपना ख्याल रखिएगा। अल्लाह निगहबान।